Hello everyone, welcome back to Summarize and Memorize. This is part 2 of Math Solutions Semester 1 End Term of IIT Madras Online Degree. In previous part we have covered till question number 7. So let's get started. The value of a quadratic function increases over the interval minus infinity to minus 10 and decreases over the interval minus 10 to infinity. Therefore, minus 10 is a critical point. F of 0 and f of 20. Minus 20 is given as 30. Now, which of the following statements are true about fx? Now, this particular question will be solved through option. Why? So, the basic formula of a quadratic equation is ax square plus bx plus c. So, we have three variable and we do have three information, that is x is equals to 0, x is equals to minus 20 की values given है and क्योंकि minus 10 मेरा एक critical point है, मतलब जो मेरा f dash x होगा वो 0 के बराबर होगा. But when you will solve these three information or equation, you will get that the two equations are getting same. So there's no further process which we can carry out. So let's do this question through option approach. तो देखो C या D में से कोई एक तो ट्रू होना ही है. So what we can do is we can put minus 20 in both the equation and figure out कि यार 30 कहाँ आंसर आ रहा है. तो अगर मैं ऑप्शन सी वाली इक्वेशन में x की जगह माइनस 20 डालती हूँ, आई विल गेट 30 एंड दिस इज व्हाट गिवन इन द क्वेश्चन एज वेल. लेकिन अगर मैं डी वाली इक्वेशन में माइनस 20 डाल रही हूँ, आई विल गेट माइनस 50 विच इज नॉट द केस. देयरफॉर या ऑप्शन सी इज करेक्ट. और ऑप्शन सी करेक्ट देखते ही मुझे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिल गई. उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट है, एक 10 है एंड एक माइनस 30 है. Since both the roots exist and are distinct, जो मेरा इस quadratic equation का discriminant होगा that will be obviously greater than equal to 0. D 0 कब होगा? जब दोनों के दोनों roots exist करेंगे पर same होंगे, और इस केस में तो distinct है, so it's obviously greater than 0. Okay, now let's move towards the another question. Rahul wrote 12 assignment. His score in each assignment is represented by this particular equation. तो ये जो equation है ये score की है. Where n represents the assignment number, तो obviously जो n है वो 1 से लेकर 12 के बीच में lie करेगा. He should score 50 or above in order to pass the assignment. तो अगर assignment में pass होना है तो उसे 50 या 50 से ज़्यादा marks लाने पड़ेंगे. Now based on this information, question number 9 बोल रहा है that how many time did Rahul score exactly 50? तो राहुल ने कितने असाइनमेंट्स में exactly 50 मार्क्स को स्कोर किया है. तो यार हर एक असाइनमेंट का स्कोर मुझे इस इक्वेशन से मिल सकता है. मतलब कि अगर मैं n की वैल्यू 1 डाल रही हूँ, आई विल गेट द स्कोर थ्रू दिस इक्वेशन ऑफ असाइनमेंट 1 एंड सो ऑन. तो मैंने क्या किया, ये जो स्कोर वाली इक्वेशन है ना, इसे 50 के बराबर कर दिया. वाई? Because I want the values of n for which this particular equation gets satisfied. तो n की वो values या n वो number of assignment होंगे जहाँ पे राहुल ने 50 score किया है. So this is the major step which I have done in this particular question. When we will solve it, we will find कि n की क्या क्या value आ रही है, 0, 5 and 10. अब 0 तो रिजेक्ट हो गई, क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 1 से 12 के बीच में ही आ सकती है. सो बेसिकली असाइनमेंट नंबर 5 एंड असाइनमेंट नंबर 10 में राहुल ने 50 exactly 50 स्कोर किया है. सो देयर आर टू असाइनमेंट इन विच राहुल हैज स्कोर्ड 50. तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2. ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन. Now this question is just a continuation of that comprehension, जहाँ पे बोल रहा है कि in total राहुल ने कितने assignments को पास किया है, और पास करने का criteria क्या था, that the score should be greater than or equal to 50. So this is the criteria. तो जो मुझे स्कोर की इक्वेशन गिवन थी उसको मैंने ग्रेटर देन और इक्वल टू 50 कर दिया. 50 से 50 गेट्स कैंसल्ड आउट, एंड क्योंकि यहाँ नेगेटिव साइन था मैंने यहाँ पे भी साइन जो इक्वालिटी इनइक्वालिटी का जो साइन है वो चेंज हो गया. सो नाउ दिस इज द इक्वेशन विच आई हैव. उससे मैंने सॉल्व किया. सो इसको सॉल्व करने से मुझे बेसिकली n की वो वैल्यूज चाहिए जहाँ पे पूरा एक्सप्रेशन लेस देन और इक्वल टू 0.
तो आई विल बी प्लॉटिंग अ ग्राफ 0, 5 एंड 10. अब 0 से पहले का तो मुझे देखना ही नहीं है. वाई? क्योंकि n की वैल्यू 1 से 12 के बीच में ही एग्जिस्ट करती है. नो प्लस माइनस प्लस ऑल्टरनेट साइन, क्योंकि ऑल द पावर आर ऑड, और ऑड में ऑल्टरनेटिवली साइन चेंज होते हैं. दिस कॉन्सेप्ट वी ऑलरेडी नो. अब मुझे n की वो वैल्यू चाहिए जहां पे एक्सप्रेशन नेगेटिव हो. तो बेसिकली 5 से 10 वाला इंटरवल मेरा सही वाला इंटरवल है. So assignments that Rahul passed are between 5 and 10, and 5 and 10 is included क्योंकि यहाँ पे equal वाला sign है ना, so 5 and 10 are included. Okay, so 5, 6, 7, 8, 9, 10. So these are the assignments जहाँ पे राहुल 50 या 50 से ज़्यादा स्कोर किया और इसलिए इन सारे असाइनमेंट में वो पास हुआ. So the total number of assignment that Rahul passed are 6. Okay, now let's move towards another question. Now this is again a comprehension. यहाँ पे मुझे एक फंक्शन डिफाइन किया गया है एंड नाउ आई हैव टू चूज द करेक्ट ऑप्शन. तो यार पहले ऑप्शंस को एनालाइज कर लेते हैं. यहाँ पे मुझे लिमिट निकालनी है 3 प्लस 3 माइनस. लिमिट निकालने के बाद मुझे ये भी देखना है कि यार ये x इज इक्वल्स टू 3 पे कंटिन्यूस है भी या नहीं. एंड देन मुझे f ऑफ 2 निकालना है रैंडमली. चलो ऑप्शन सी बिल्कुल अलग है. A, B और C connected है. That is at x is equals to 3. I need to find out the limit and the continuity. तो इसे प्रोसीड करने से पहले एक बेसिक थ्योरी रिवाइज कर लेते हैं. दैट इज किसी भी पॉइंट पे लिमिट कब एग्जिस्ट करेगा? जब उसका x माइनस और x प्लस बराबर होंगे. ठीक है, दैट इज द पॉइंट जहां पे लिमिट एग्जिस्ट करेगा. और उस ग्राफ को या उस फंक्शन को मैं कंटिन्यूस कब कहूंगी? जब लिमिट भी एग्जिस्ट करेगी और वो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के बराबर होगी. So in this particular, if this particular equation gets satisfied, I will say कि चलो continuous है इस पॉइंट पे. अगर मैं ग्राफ के थ्रू समझाऊं, so see this is a graph. तो यार ये ग्राफ है. ठीक है, तो यहाँ पे मतलब एट x इज इक्वल्स टू 3 कोई वैल्यू है ही नहीं फंक्शन की. बट 3 माइनस पे जाओ तो ये है, 3 प्लस पे जाओ तो ये है. सिंस बोथ आर इक्वल आई कैन से दैट द लिमिट एग्जिस्ट. क्यों? क्योंकि 3 माइनस मतलब 3 से थोड़ा पीछे जाओ और 3 के थोड़ा आगे जाओ, देखो फंक्शन की क्या वैल्यू है. इफ द फंक्शन इज स्टिल द सेम आई कैन से दैट लिमिट एग्जिस्ट. बट यार इस केस में कंटिन्यूअस नहीं है फंक्शन. ये जो ग्राफ है ये एट x इज इक्वल्स टू 3 कंटिन्यूअस नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि लिमिट तो एग्जिस्ट कर रही है बट वो लिमिट इज नॉट इक्वल टू द फंक्शन की वैल्यू विच इज एट 3. बट फॉर एग्जाम्पल अगर मेरा ये ग्राफ यहाँ पे टूटा हुआ ना हो और ऐसा हो तो at this point of time I can say that yes, this function is continuous and the limit also exists. तो यार ये ग्राफ के थ्रू मैंने लॉजिक समझा दिया. All you need to remember is this equation if you need to check the limit and this equation if you need to check the continuity. Now let's get started. Okay. Okay, तो मुझे x प्लस का निकालना है तो मैं x की जगह क्या रिप्लेस कर दूंगी फंक्शन में? 3 प्लस h. मतलब 3 से थोड़ा सा आगे बढ़ गए अपन. तो मैंने x की वैल्यू किससे रिप्लेस कर दी? 3 प्लस h से रिप्लेस कर दी. फिर इसे एक्सपैंड किया, फिर इसे सॉल्व किया. आई विल गेट h स्क्वायर प्लस 2h. h कॉमनली बाहर निकाल लिया. न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से दिस गेट्स कैंसल्ड आउट. अब h की लिमिट क्या है? 0 है. तो जब मैंने कंप्लीटली सॉल्व कर लिया और मेरे पास जो फाइनल एक्सप्रेशन है दैट इज ओनली इन फॉर्म ऑफ h, मैं h की वैल्यू डाल सकती हूँ दैट इज 0. सो 0 प्लस 2 इज 2. तो जो मेरी लिमिट है एट x 3 प्लस दैट इज इक्वल टू 2. तो जो मेरा ऑप्शन ए है दैट इज करेक्ट. वाई? क्योंकि मुझे ऑलरेडी गिवन है जब f ऑफ 3 होगा मतलब जब x की वैल्यू 3 होगी तो मेरा फंक्शन क्या है? 2. मेरी लिमिट क्या है? 3 प्लस की दैट इज 2 एंड दिस इज व्हाट विच इज रिटन इन ऑप्शन ए. नाउ लेट्स चेक फॉर ऑप्शन बी दैट इज लिमिट एट 3 माइनस. तो यहाँ पे अब मैं x को किससे रिप्लेस कर दूंगी? 3 माइनस h से. Again I will expand and solve. Since now I have the function only in the form of h, मैं h की वैल्यू पुट कर दूंगी 0. So 0 minus 2 का mod will be 2 divided by minus 1. So the final answer will be minus 2.
So the limit of x going to 3 minus is -2. So this gets wrong. तो मेरा ऑप्शन जो 2 है दैट इज रॉन्ग. अब मुझे f of 2 की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो यार ये ऑलरेडी देखो अपन को फंक्शन में डिफाइंड है कि जब x की वैल्यू 3 है तो 2 लिख दो. जब x की वैल्यू 3 नहीं है तो यार ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन यूज करो. मुझे x इज इक्वल्स टू 2 पर निकालना है विच इज नॉट इक्वल टू 3. तो मैं ऊपर वाले एक्सप्रेशन की मदद से f of 2 निकाल लूंगी. तो अब यहाँ पे मैंने x को किससे रिप्लेस कर दिया? 2 से. सिंपली कैलकुलेट किया एंड f of 2 निकाल लिया. सो ऑप्शन सी इज अ इजी पार्ट. ओके, नाउ इसमें कुछ भी हार्ड नहीं था. एंड d इज ऑब्वियसली रिजेक्टेड. वाई? क्योंकि यहाँ तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही. x जो कि 3 प्लस पे जा रहा है दैट इज 2. And when x is going to 3 minus, that is -2. So LHS, that is the left hand limit and the right hand limit are not equal. तो limit ही exist नहीं कर रही तो function continuous तो कैसे ही होगा? Correct? Okay. Now let's move towards the last question of our today's lecture. So, okay. The same question. Now we need to again choose the correct option. पर यहाँ पे ना इस बार differentiation पे work हुआ है. So मुझे f-5 f-5 निकालना है. क्या फंक्शन x of 1 पे डिफरेंशिएबल है? f of 2 की क्या वैल्यू है? तो बेसिकली मुझे डिफरेंट फंक्शन गिवन है और फंक्शन के डिफरेंशिएबल फॉर्म पे कमेंट करना है. तो यार पहले तो मैं f-x ही निकाल लेती हूँ. ठीक है, तो देखो this is a function and this is a modulus function and you already know the speciality of a modulus कि it always return us the positive value. तो अगर अंदर की वैल्यू नेगेटिव है तो अपन नेगेटिव साइन से ओपन करते हैं और अगर अंदर की वैल्यू पॉजिटिव है तो एज इट इज आउटपुट आ जाता है. तो पहले तो जो मैंने मॉड के अंदर जो भी इक्वेशन थी ना उससे फिगर आउट किया कि यार ये x की कौन कौन सी वैल्यू पे प्लस देगा और कौन कौन सी वैल्यू पे नेगेटिव देगा. तो जहां जहां पे नेगेटिव वैल्यू देगा वहां तो मॉडुलस नेगेटिव से खुलेगा और जहां जहां पे पॉजिटिव देगा वहां वही सिंपली लिखा होगा, मतलब एज इट इज सेइंग. तो जब x की वैल्यू -∞ से 1 और 3 से इंफिनिटी है तो मॉडुलस के अंदर वाला एक्सप्रेशन पॉजिटिव है तो डायरेक्टली बाहर आ गया. सो मेरा जो f(x) है आई कैन राइट इट लाइक दिस. फिर x² - 4x + 3 को फैक्टर्स में डिवाइड किया, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर से कुछ कुछ कैंसिल हुआ. तो मेरा जो f(x) है दैट इज x - 1. इसे डिफरेंशिएट करो, दिस इज द आंसर. सो बेसिकली x की हर एक वैल्यू जो कि -∞ से 1 and 3 to infinity पे लाइक करेगी उसका f'(x) 1 आएगा. तो f'5. So basically 5 and -5 satisfy this particular interval. So yeah, the differentiation will be 1. So option A is correct. Now मुझे 1 पे ढूंढना है and 1 क्या है? मेरा बॉर्डर वाला वैल्यू है. तो 1 comes here and 1 comes here as well. तो मुझे दोनों देखना पड़ेगा. अगर लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएशन एंड राइट हैंड डिफरेंशिएशन आर इक्वल देन ओके, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल्स टू 1, वरना नहीं है. तो अब जब यार x की वैल्यू 1 से 3 के बीच में है ना तो फंक्शन नेगेटिव के साथ खुलेगा. क्यों? क्योंकि मॉडुलस के अंदर वाली वैल्यू नेगेटिव है तो मॉडुलस किससे खुलेगा? नेगेटिव साइन से खुलेगा. सो जो मेरा फाइनल फंक्शन की वैल्यू आएगी व्हेन x इज बिटवीन 1 and 3 दैट इज -(x - 1). इसे हम डिफरेंशिएट करेंगे तो आंसर आएगा -1. तो यार नाउ यू कैन by yourself see कि left hand differentiation at x is equals to 1 is 1 and right hand differentiation at x is equals to 1 is -1, which is not equal. Therefore my function is not differentiable. अब मुझे f'2 निकालना है. तो 2 मेरी कौन सी वाली पे लाई कर रहा है? दिस इज लाइंग इन दिस इंटरवल 1 से 3 के बीच में लाई करता है 2. तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? -1, which this is what written in option D. So that's all in this particular lecture. I hope this has helped you.